कमिंग टू एक्सरसाइज 7.2 लास्ट क्लास में हमने कुछ थ्योरम्स देखे थे एंड वी हैव सॉल्व फ्यू एग्जांपल्स एंड लेट्स डिस्कस 7.2। तो चलिए बताइए आप लोग, अभी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डाउट्स अपने बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 शाश्वत मिश्रा है मैम क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके फाइन, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा। ओके, look at the question number 1. It is given that in an isosceles triangle ABC, we are given with an isosceles triangle named as A, B and C. Now isosceles triangle means two sides are equal. अब हमें नहीं पता टू साइड्स में AB BC इक्वल है, AC BC इक्वल है, क्या इक्वल है। And in the next statement it is given that AB is equals to AC. These two sides AB and AC are equal to each other. The bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Bisectors of angle B and angle C, it means somehow we are going to draw like this. और कहीं से पॉसिबिलिटी है क्या कि एंगल B और C का बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं? मुझे और कहीं से तो पॉसिबल नहीं है कि B और C का बाइसेक्टर ड्रॉ करें, और ये भी नहीं है पॉइंट O पे मीट कर रहे हैं। इट डजेंट मीन दे आर गोइंग टू मीट समवेयर ऑन दी A और एल्स आउटसाइड दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के बाहर या फिर A के ऊपर तो मीट नहीं करने वाले, बिकॉज बाइसेक्टर मीन्स ये बेंट होगी लाइन, तो कहीं ना कहीं अंदर ही मीट करेंगे। सो वी कैन से दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ B एंड C आर मीटिंग एट पॉइंट O एंड दिस इज योर पॉइंट O. जॉइन A टू O, A को O से ज्वाइन करना है and show that OB is equals to OC. In the first part we have to prove that OB and OC both the line segments are equal. These two bisectors OB and OC ये दोनों क्या है आपके इक्वल है लेंथ में, ये प्रूव करना है। Look over here. Okay fine, in triangle ABC it is given that AB is equals to AC. It means it is an isosceles triangle. अगर AB और AC इक्वल हैं then angles opposite to equal sides of isosceles triangle are also equal. हमने थ्योरम पढ़ी है, इनके अपोजिट एंगल्स it means this one, and the angle opposite to this side AC it means this angle B. Angle B is equals to angle C. This is the isosceles triangle property, or else you can write angles opposite to equal side. Angles opposite to equal side are equal, ये लिख सकते हो। Angle B and angle C equal हैं, then this is the bisector BO and CO is the bisector. So half of angle B will also be equals to half of angle C, or else indirectly we can say that we are multiplying by half on both sides. हम हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो हाफ ऑफ एंगल B will also be equals to half of angle C. इक्वल होगा half of angle BC. BO is the bisector, it means half of angle B can also be written as angle CBO. It means I am talking about this angle CBO, and as CO is the bisector, then half of angle C can also be written as angle BCO. Can we write it as BCO? It means from here angle CBO this angle and angle BCO this angle, these two angles are equal. ये equal है,
अगर ये इक्वल है देन कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, इस जो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की यस कॉन्वर्स हमने जो पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू दैट द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। जो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस the side opposite to this angle BCO is your side BO and the side opposite to angle CBO is CO. So from here we can say that OB is equals to OC. You can write sides opposite to इक्वल एंगल्स। ये क्लियर है, फर्स्ट बिट ओके है। शाश्वत, इज इट ओके टू यू? कमिंग टू बिट नंबर 2, हियर वी हैव टू प्रूव दैट AO bisects angle A. AO is bisecting angle A means we have to prove that this angle is equals to this angle. These two angles are equal. So the triangle formed by this angle is, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ट्राइंगल क्या बन रहा है, AOB बन रहा है। एंड ट्राइंगल, इस एंगल को देखो एक्सटेंड करके इसकी आर्म्स कहाँ जा रही हैं, AOC बन रहा है। So if we prove these two triangles are congruent then might be possible by CPCT these two angles will also be equal. अगर इसको हम congruent प्रूव कर देते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि CPCT से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पर देखो सब कुछ पहले ही मार्क्ड है, हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस AB इज इक्वल्स टू AC, इट इज़ गिवन। Then this angle is equal to this angle, half of the angle B is equal to half of angle C means we can write that half of angle B is equals to half of angle C, means we can write half of angle this in the previous case we have written half of angle B as angle CBO because in that case हम इस triangle की बात कर रहे थे, हमें इस triangle की इस angle की requirement थी। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल AOB, सो हमें इस एंगल की रिक्वायरमेंट है। सो हाफ ऑफ एंगल B कैन बी रिटन एज एंगल ABO एंड हाफ ऑफ एंगल C कैन बी रिटन एज एंगल ACO. These two angles are equal and this side we have proved in the above case that OB is equals to OC. This we have proved above. According to this, see we got three conditions: one side, one angle and again one side. So side, angle, side. Triangle AOB is congruent to triangle AOC by side, angle, side congruency rule. Let's check out side, angle and side. Okay, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर साइड, एंगल एंड साइड, यहाँ पर भी ठीक है। इट मीन्स इट इज़ सेटिस्फाइंग द कंडीशन। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड, एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। बट हियर वी हैव टू प्रूव दैट दिस AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। लेट्स चेक आउट कि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं या नहीं है। So the angle formed between double marked and unmarked line, and here also the angle formed between double marked and unmarked line. It means these are the corresponding part. So from here we can say that angle BAO is equals to, हाँ हो सकता है मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने वो रूल अभी तक पढ़ा नहीं है। एंगल CAO by CPCT and these two angles are equal. It means AO bisects angle
ए। क्लियर है? ओके फाइन। ओके, coming to the next question, question number 2. Question number 3. Coming to question number 5. ABC and DBC are two. अच्छा, we are given with the figure in this case. ABC, this is your triangle A, B and C, and DBC, this is your triangle DBC. ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. See here, on the same base BC, base is same and these two are the isosceles triangle. So it is given in the देखो यहाँ से confirm नहीं होता which two sides are equal, but it is given in the figure that these sides are equal. This is equals to this side and this side is equals to this side. ये side equal है, आपको दिया हुआ है. We have to prove that angle ABD is equals to angle ACD. Okay, we have to prove here that ABD and ACD both are equal. हमें ये proof करना है ABD, it means we are talking about this angle, is equals to ACD, it means we are talking about this angle. ये दोनों angles equal है, हमें ये proof करना है. कैसे proof करेंगे देखते हैं. First of all, consider triangle ABC. In triangle ABC, it is given that this is an isosceles triangle and here AB and AC, these two sides are equal. So angle opposite to these sides will also be equal. So angle opposite to AB is ACB and angle opposite to AC is ABC, this angle. These two are also equal. Angles opposite to equal side. From here we got that this angle, let this be angle 1 and this be angle 2. Write it as angle 1 or angle 2 is equals to angle 1. Angle 2 and angle 1 equal है. Next, coming to triangle, in triangle DBC, in another triangle again we are given that these two sides are equal. BD is equals to CD, it is given to us. According to the isosceles triangle property, the angles opposite to equal sides are also equal. So angle opposite to side BD is your angle DCB is equals to angle DBC. रीज़न लिख देना है यहाँ पर. ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं. इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है. लेट दिस बी 3 एंड दिस बी 4. सो फ्रॉम हियर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस बी योर इक्वेशन नंबर 2. जस्ट ऐड 1 and 2. वन एंड 2 को ऐड करेंगे तो LHS को LHS के साथ. सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 और RHS को RHS के साथ. दैट इज़ एंगल 1 प्लस एंगल 4. एंगल 2 प्लस 3 इज़ नथिंग बट योर एंगल C एंड एंगल 1 प्लस 4 इज़ नथिंग बट योर एंगल B. C को हम लोग एंगल ACD भी लिख सकते हैं.
एंड बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज एंगल ए बी डी, और यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। Here it is given as triangle ABC is an isosceles triangle. We are given with a triangle A, B and C, and this is an isosceles triangle, but till now we don't know which two sides are equal, in which AB is equals to AC. Now it is given that AB and AC, these two sides are equal to each other. Side BA is produced to D such that AD is equals to AB. Okay, we are given with the figure also. हमें फिगर यहाँ पे given है। हमने क्या किया है, साइड BA को प्रोड्यूस किया है कहाँ तक, टिल पॉइंट D तक। मुझे फिगर, चलिए पहले बनाना चाहिए था, मैं फिगर चेंज कर रही हूँ। वही वो राइट ट्रायंगल बन रहा है ना, वो यहाँ पे बहुत लेंदी चला जाएगा, ऊपर तो कहाँ ही जाएगा पता नहीं। दिस वॉज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच साइड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। ए डी एंड ए बी दोनों कैसे हैं, इक्वल, इट मीन्स दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी डी। ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे डबल मार्क है तो ये भी डबल मार्क ही आएगा, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं। शो दैट एंगल बी सी डी इज़ अ राइट एंगल, हमें ये प्रूफ करना है एंगल बी सी डी is a right angle, that means the measure of this angle is equals to 90 degree। यहाँ पर देखो एक छोटा सा लॉजिक है, अगर आप लोगों ने वो लगाया होता तो सॉल्व हो जाता क्वेश्चन। लॉजिक क्या है यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी तो यूज़ करना ही होगा, बट हियर एज वी हैव लर्न द आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, वही उसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। लेट्स सी, here in triangle ABC it is given to us that AB and AC both the sides are equal, it is given in the equation itself. So according to this we can say that the angle B and angle C both are equal. You can write the reason and look in the triangle ADC. Sides AD and AC, अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल थे तो ऑब्वियसली AD और AC भी इक्वल ही होंगे। सो यहाँ पर क्या था, AB is equals to AC and AB is also equals to AD. This is given in the question. These two things are given in the question. So according to this, if we compare these two, from here AC and AD, these two sides will also be equal. So AC is equals to AD. Now if these two sides are equal, then the angles opposite to these sides, that means this angle D and this angle, these two angles are also equal. We can say that angle ACD is equals to angle ADC. Reason you can write over here. ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, ये हम बोल सकते हैं। फॉर अ मोमेंट सपोज दैट
राइट इट एज एंगल BCA। यहाँ पर BCA, C मतलब ये पूरा एंगल आपका हो गया, हम सिर्फ इतने एंगल्स की यहाँ पे बात कर रहे थे, BCA। फॉर अ मोमेंट जस्ट सपोज दैट दिस इज इक्वल्स टू x, ये दोनों एंगल्स x के इक्वल हैं। अब ये दोनों x की इक्वल हैं तो क्या ये दोनों भी x की इक्वल होंगे? पहले आप मुझे ये बताइए, होंगे फॉर श्योर? देख लो, ध्यान से देख लो, बार होंगे या नहीं होंगे, बाद में मत बोलना नहीं होंगे। ये एंगल्स x हैं तो क्या ये एंगल्स भी x के इक्वल होंगे? अच्छा, किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि इक्वल होंगे ये? Angle sum property says that the sum of all the three interior angles of a triangle is equals to 180 degree. And here I am talking about two different triangles. If these two angles are equal, so can we say that the angles of this triangle are also equals to x? No, we can't. ये दोनों एंगल्स x के इक्वल नहीं होंगे। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट ट्रायंगल्स। अगर इस ट्रायंगल के दो एंगल्स का मेज़र x है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि इसके भी दोनों ट्रायंगल्स का मेज़र x ही हो। हाँ, ये दोनों इक्वल हैं, हमें बस इतना पता है, बट इनका मेज़र क्या ज़रूरी थोड़ी ना है कि इसी ट्रायंगल के मेज़र के इक्वल हो। दिस इज़ नॉट कंपल्सरी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये x है तो ज़रूरी कंपल्सरी नहीं है कि ये भी x ही हो। So for a moment suppose that these two angles are equals to y, ये दोनों एंगल्स y के इक्वल हैं। अब हम ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इन ट्रायंगल ABC कैन वी से दैट एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2x, ऐसा कुछ ही मिलेगा, ऐसा कुछ ही मिलेगा। क्लियर है या नहीं है वो ऊपर वाला स्टेटमेंट? यहाँ पर x प्लस दिस एंगल, द सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये वाला जो एंगल है क्या होगा? 180 माइनस एक्स प्लस एक्स कितना हुआ? 2x, तो 180 माइनस 2x ही होगा या नहीं? इसमें कन्फ्यूज़न है क्या कोई? होगा या नहीं होगा? सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC y प्लस दिस एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, दैट इज एंगल DAC, सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एंड from here angle DAC will be equals to 180 degree minus 2y, है कि नहीं है? ओके, let this be equation number 3 and this be equation number 4. just add 3 and 4, 3 और 4 को ऐड करो। एंगल BAC प्लस एंगल DAC, एंगल BAC प्लस एंगल DAC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y। BAC एंड DAC, ये मतलब ये पूरा एंगल है BAC, इट मीन्स दिस एंगल
DAC, इट मीन्स दिस एंगल। दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा पूरा ये आएगा एंगल, ये वाला पूरा आएगा। एंड दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 180 डिग्री के इक्वल है, स्ट्रेट एंगल है ना, 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री होगा, इसको मैंने 180 डिग्री लिख दिया। दिस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y, ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इसको इधर माइनस करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा आकर के। सो कैन वी राइट माइनस 2x माइनस 2y प्लस 180 इक्वल्स टू 0, होगा ऐसा। माइनस 2x और माइनस 2y इस तरफ को शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसा कुछ मिलेगा। ये दोनों प्लस में हो जाएंगे इधर शिफ्ट होने के बाद। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। किसी भी स्टेप में कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो बताना। यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, x प्लस वाई 90 आया। एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस angle BCD is a right angle. It means angle BCD is nothing but, BCD आपका क्या है, देखो यहाँ से x प्लस वाई ही तो है, BCD x प्लस वाई ही तो है, और हमने अभी प्रूफ किया था सम ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। या फिर आपको और स्टेप्स आगे बढ़ाने हैं, देन यू कैन से दैट इन ट्रायंगल BDC, इस पूरे ट्रायंगल में एंगल x प्लस वाई प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर से सभी में x इसको ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, तब जा करके आंसर आएगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे ही कर लो, हो जाएगा। ऐसे कर सकते थे, ये एंगल्स इक्वल्स हैं, तो यहाँ से देखिए इन ट्रायंगल BDC, इस पूरे ट्रायंगल में देखो x प्लस वाई में ये वाला एंगल आपका x हो गया, ये वाला एंगल x प्लस वाई हो गया, ठीक है। ये सिंपल है, ये आपका एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। ये आपका x है, ये वाला एंगल x प्लस वाई है, एंगल x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी होगा। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल x प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x प्लस वाई यहाँ से कितना आ गया, 90 डिग्री, और x प्लस वाई आपका था क्या, यही एंगल C था, एंगल BCD। दिस यू कैन सॉल्व इन 1 स्टेप, इसको आप एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। एंड दिस इज़ द लेंथियर प्रोसेस, बट ये आपका कॉन्सेप्ट जो आपने अभी पढ़ा हुआ है उस पर बेस्ड है। एग्ज़ाम में आता है, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एक स्टेप में सॉल्व कर देना। ओके, once look at question number 8 for a look at past. You have to prove that each angle of an equilateral triangle is equals to 60 degree. This is an equilateral triangle and we know that in an equilateral triangle all sides are equal. If suppose for a moment suppose that these two sides are equal, then angles opposite to these sides, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल। अगर हम सपोज करते हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो एंगल अपोजिट टू दिस साइड इज़ दिस वन एंड एंगल अपोजिट टू साइड AC इज़ योर एंगल B. It means all 3 angles are also equal.
तीनों एंगल्स भी आपके कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। जस्ट मेक यूज़ ऑफ, यस, मेक यूज़ ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। Okay, fine. From here you will get x as 60 degree. Any other doubt in any other question?